Good morning to my dear students. In previous lecture, we have learned about collection of craft work. So, we have started with a topic that is collection of craft work, where we have saw what is meant by collection of craft work. Then we have saw about how to decorate the paper bag to your choice. Then we have made a paper bag. We have saw how to prepare a paper bag with help of waste out of best things. So we have prepared a paper bag. We have used various types of materials to prepare this paper bag. So ये paper bag बनाने के लिए हमने varieties of things use किए थे, such as glue to stick the paper, then marble paper, or we have used newspaper, any paper we have used. Then we have used various types of decorative items such as dry fruit shells, chips, ribbons, color stones, etc. So with help of all these decorative items which were available with us, we have put all these decorative items on a paper bag and we have decorated a paper bag. So with help of all this material, we have prepared a paper bag in a previous lecture. Now student, I will show that video again so that you will revise what we have learned and how we have made that paper bag in a previous lecture. So student, have look on that video again. So here is the video. I hope you have understood how we have prepared a paper bag in a previous lecture by watching that video again. Now student, let us move further. So in today's lecture, we are going to study the new topic that is different shapes with help of stick. So आज के लेक्चर में हम क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी के जो 4 मेन टॉपिक्स थे उसमें से लास्ट टॉपिक यानी डी वाला टॉपिक
दैट इज डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स देखने वाले हैं. सो स्टूडेंट, आर यू रेडी टू लर्न द टॉपिक? वेरी गुड. सो let us start a new topic, that is different shapes with help of sticks. I request all the students to open your EVS combined book page number 95. So here first we will see what all things they have given us in a combined book. So we will discuss about that, and then in further video I will show you what all materials and how to prepare shapes with the help of sticks. So let's open our EVS combined book page number 95. Now what is different shapes with help of stick? So different shapes means various types of shapes, varieties shapes, यानी अलग अलग प्रकार के शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, बोट शेप, बलून शेप, काइट शेप, एनी टाइप ऑफ शेप, कबर्ड शेप, विंडो शेप, चेयर शेप, जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट का शेप रहता है, प्रॉपर शेप रहता है, वो शेप हम लेंगे. और विथ हेल्प ऑफ स्टिक्स, तो हम स्टिक्स लेंगे. अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है, स्टिक्स यानी क्या, तो छोटी वाली लकड़ी, अगर आपके पास वो स्टिक्स नहीं है तो आप मैच बॉक्स का जो स्टिक्स रहते हैं, मैच बॉक्स के अंदर जो स्टिक्स रहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. मैं जो आपको आगे वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें मैंने स्टिक किए, उसमें भी मैंने मैच बॉक्स के स्टिक्स यूज़ किए. अगर आपके पास सिंपल स्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मैच बॉक्स के भी स्टिक्स यूज़ कर सकते हो. सो आपको क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ. तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, जो आपके बुक में आपको बोर्ड का ऑब्जेक्ट दिया है, पर अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा. एग्जांपल, अगर मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया है कबर्ड, तो जो कबर्ड का ऑब्जेक्ट शेप दिया गया है, वो कबर्ड के शेप को आपको खाली उसके बॉर्डर को, जो आउटलाइन दी है कबर्ड की, उसको आपको स्टिक करना है. तो जैसे उसका शेप है वैसे ही आपको स्टिक्स को स्टिक करके जाना है. और फिर उसके बॉर्डर को, जब आउटलाइन को, आप पूरे आउटलाइन को स्टिक चिपकाओगे तो आपका जो आउटलाइन ऑफ कबर्ड है वो रेडी हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी शेप दिया जाएगा आपको उसको स्टिक चिपकाना है. सो आपको वो जो भी शेप दिया है उसको आपको स्टिक से चिपकाना है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. सो आपको जो भी शेप्स प्रोवाइड किया है उसको आपको स्टिक चिपका के वो प्रेजेंट करना है. नाउ लेट्स डू. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लेट्स डू में क्या क्या फॉलो करना है. देखो, put glue on the outline of the board. So first point they have told is put glue on the outline of the board. So आपको glue यानी गम को आपको जो बोट का शेप दिया है आपके बुक में कौन सा शेप दिया है, दैट इज बोट आप कहाँ पे देखते हो, यस, यू सी बोट इन वाटर, वो पानी के ऊपर रहती है बोट जिसमें मछुआरे मच्छी पकड़ते हैं. यस और नो, द फिशमैन डू फिशिंग इन दैट बोट. समटाइम्स वी गो फॉर आउटिंग इन द बोट. सो ये जो बोट दी गई है वो बोट का आउटलाइन दिया है, ब्लैक कलर से बोट का आउटलाइन दिया है. वेरी गुड. सो आपको क्या करना है, वो जो आउटलाइन है उसको ही ग्लू लगाना है. आपको पूरे बोट को ग्लू नहीं लगाना है, आपको जो बोट के आउटलाइन है, आउटलाइन की साइड की जो लाइंस दिए उन्होंने, उसको ही आपको ग्लू अप्लाई करना है. ग्लू अप्लाई करने के बाद आपको 1 स्टिक्स लेना है और वो आपको प्लेस करना है. जो ग्लू आपने अप्लाई किया है उसके ऊपर आपको वो ग्लू के ऊपर आपको स्टिक को चिपकाना है. आप जब चिपका रहे हो तभी हर स्टिक्स, जो मैच बॉक्स के स्टिक्स है वो सब बड़े होते हैं एक ही साइज़ के, तो कहीं कहीं जगह पे आपको छोटी स्टिक करने लगेगी. तो आपको क्या करना है, तो आपको उस स्टिक को सीजर से कट करना है. तो आपको अच्छी तरीके से वो सीजर से स्टिक को कट करना है. तो आप कट करने के लिए अपने पेरेंट्स की या अपने भैया बहन की हेल्प ले सकते हैं. वो कट करने के बाद आपको जितनी जगह पे जितनी स्टिक की ज़रूरत है उतनी कट करने के बाद आपको वहाँ पे स्टिक करनी है. तो आपको ये पूरा जो स्टिक है वो आपको पूरे बोट के आउटलाइन को लगाना है. सो यू हैव टू स्टिक दिस स्टिक टू होल्ड द आउटलाइन ऑफ योर बोट. पूरे बोट को स्टिक करने के बाद आपको क्या करना है,
उसके पीसेस स्टिक करने के बाद आपको उसको सुखाना है। सुखाने के बाद आप जब आपके बुक में वो सूख जाएगा तभी आपका जो बोट है जिसको हमने स्टिक से स्टिप किया है वो आपका रेडी हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, सो यू हैव टू पुट अ ग्लू ऑन द आउटलाइन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वो जो बोट की आउटलाइन है उसको आपको स्टिक करना है, ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद आपको स्टिक्स लेना है और टेक पीस ऑफ द स्टिक एंड प्लेस ऑन द ग्लू। सो आपको वो ग्लू के ऊपर एक एक स्टिक लेके उसको पेस्ट करना है और फिर वो पेस्ट करने के बाद आपको पूरा जो बोट का आउटलाइन दिया है वो कंप्लीट करना है। आपको बोट का ऊपर वाला फ्लैग, फिर नीचे वाला जो कपड़ा रहता है बड़ा वाला वो, और फिर नीचे का पार्ट बोट का, वो सब आपको मैच स्टिक से या नॉर्मल स्टिक से चिपकाना है। उसको ग्लू लगाना है आउटलाइन को और चिपकाना है। फिर ही आपका जो डिफरेंट शेप्स विद द हेल्प ऑफ स्टिक में जो बोट का आउटलाइन दिया था वो कंप्लीट हो जाएगा। सो जो भी बुक में दिया था वो हमने अभी डिस्कस किया है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी हमने देख लिया है, यानी सुन लिया है। अभी आपको मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ। वो वीडियो में हमें क्या क्या मटेरियल लगेगा और कैसे हम उसको बनाएंगे वो मैं दिखाने वाली हूँ। सो पहले मटेरियल क्या क्या लगेगा मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ। तो आपको ग्लू लगेगा यानी गम, चिपकाने के लिए गम लगेगा। फिर आपको स्टिक्स लगेंगे, अगर आपके पास स्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो आप मैच स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपको सीज़र लगेगी, अगर बड़ी वाली मैच स्टिक्स है उसको छोटा करना है तो आप सीज़र से कट कर सकते हो, और कट करने के लिए आपको पेरेंट्स की या अपने भाई बहन की ज़रूरत है। फिर आपको आपकी ईवीएस की कंबाइन बुक लगेगी क्योंकि उसके अंदर ही आपका जो बोर्ड का आउटलाइन है तो आपको उसके अंदर ही चिपकाने के लिए ईवीएस की नोटबुक लगेगी। तो आपको ये सारी चीज़ चाहिए, ये डिफरेंट शेप्स विद हेल्प ऑफ स्टिक्स, ये बोर्ड्स का जो आउटलाइन है उसको करने के लिए। सो आई होप you will keep all these things ready. Now students, in further video I am going to show you all the materials that we require to do this, and also I will show how to do or how to stick all those sticks in that book. So you have to watch this video carefully. So I will start with my video. Let us start making shape with the help of stick. तो जो हमारे कंबाइन बुक में शीट का शेप दिया है यानी बोर्ड का जो शेप दिया है उसको हम स्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, ग्लू की जरूरत है और स्टिक्स की। तो अगर आपके पास स्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो आप मैच स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो मैच बॉक्स में जो स्टिक्स रहते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं भी वही स्टिक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो हमें क्या लगेगा, ग्लू और मास्टिक। क्यों, हमें बोर्ड के ऊपर जो बोर्ड का डायग्राम दिया है उसके ऊपर ये चिपकाना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ग्लू लेके जो बोर्ड की आउटलाइन है उसको आपको ग्लू लगा के वो जो स्टिक्स है वो आपको स्टिक करने हैं। सो आपको एक एक वो जो बोर्ड की आउटलाइन है उसको स्टिक करना है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप फॉलो करके उसको आराम से स्टिक करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टिकिंग ऑल द स्टिक। सो स्टिक करने से पहले मैं ग्लू लगाने वाली हूँ। सो आपको भी पूरे आउटलाइन को ग्लू लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द ग्लू। सो जैसे मैं ग्लू लगा रही हूँ वैसे ही आपको ग्लू लगाना है। सो यहाँ पे मैंने हर एक बॉर्डर को ग्लू लगाया है। तो आपको भी ऐसे फुल बॉर्डर को ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद आपको एक एक स्टिक को स्टिक करना है। सो स्टूडेंट, अभी हम जहाँ जहाँ पे ग्लू अप्लाई किया है उधर मैं स्टिक को चिपकाने वाली हूँ। तो मेरे पास नॉर्मल स्टिक्स नहीं थे तो इसलिए मैंने मैच बॉक्स का स्टिक्स लिया है। सो आप भी अगर आपके पास नॉर्मल स्टिक नहीं है तो आप मैच बॉक्स का स्टिक यूज कर सकते हो। अभी मैं उसको चिपकाने वाली हूँ। आपको आराम से एक एक को चिपकाना है।
अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटी जगह है, तो यहाँ छोटी जगह पे मैं छोटा स्टिक चिपकाने वाली, जो छोटा स्टिक चिपकाने के लिए मैं जो ये बड़ी वाली स्टिक है उसको तोड़ देने वाली हूँ, और जो उसका छोटा वाला हिस्सा है उसको स्टिक करने वाली, और फिर ये जो है वो इधर स्टिक करने वाली। तो आपको भी वैसा ही करना है। फिर यहाँ पे मैं बड़ी वाली स्टिक, और फिर से यहाँ पे छोटी जगह है, तो यहाँ पे फिर से मैं स्टिक को ब्रेक करके वो छोटा वाला हिस्सा है उसको स्टिक करने वाली हूँ। अभी जो फ्लैग है उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर अभी जो बोट का नीचे का हिस्सा है उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। आपको अच्छी तरीके से ये स्टिक करना है। यहाँ पे एक छोटी जगह जो रह रही है उसको हम स्टिक को ब्रेक करके चिपकाने वाले हैं। और फिर उसके बाद आपको ये जो अंदर की आउटलाइन दिख रही है उसको भी आपको स्टिक करना है। और जो यहाँ पे गैप रह गया है उधर हम छोटी वाली स्टिक को चिपकाएंगे, तो आपको ब्रेक करना। तो यहाँ पे जो बोट की आउटलाइन उन्होंने दी थी वो हमने कंप्लीट की है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, तो यहाँ पे हमने पहले बोट की आउटलाइन को ग्लू लगाया, फिर उसके बाद हमने एक एक स्टिक को वो उसके ऊपर चिपकाया है। तो यहाँ पे हमारी जो बोट है वो रेडी हो गई है। सो आपको भी ऐसे ही चिपकाना है। तो यहाँ आपको यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा भी चिपकाना है, फिर उसका अंदर का भी और बाहर का भी, और जो दो लाइन उन्होंने यहाँ पे दी है वो भी आपको कंप्लीट करना है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस डिफरेंट शेप विद द हेल्प of the sticks. So here is this your video. So you have to see all the steps from this video and you have to complete it in your EVS combined book on page number 95. I hope you have understood by watching this video. So जो अभी मैंने वीडियो दिखाया हुआ है उसमें से आपको समझ में आया होगा आपको किस तरीके से ये जो टॉपिक आपके EVS कंबाइंड बुक में दिया है वो आपको प्रेजेंट करना है. Now let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have learned about different shapes with help of sticks. So आज के लेक्चर में हमने different shapes with the help of sticks ये लेसन या ये टॉपिक आज हमने देखा. In that we have saw what all things we required to do this topic. So the things that we require to do this topic is we require glue, then we require a combined book, then we require sticks, and then we have done this boat by sticking all the sticks to the outline of the boat. Then we have saw the video where how to sticks all the sticks to the outline. तो हमने एक वीडियो देखा उसमें हमने देखा कि वो बोट के आउटलाइन को कैसे स्टिक्स को चिपकाना है. So here we have saw it where we have saw that we have to put or we have to apply the gum to the outline of the boat. After applying the glue to the outline of the boat, we have sticks, all the sticks to that boat. Then we have also sticks, small sticks where the place big stick cannot fit. तो हमने जो छोटी स्टिक है उसको भी वहाँ बोट के उधर चिपकाया था.
तो उसको हमने कट करने के लिए सीजर का इस्तेमाल किया था, और जो स्टिक्स थे उसको चिपकाने के लिए हमने ग्लू का इस्तेमाल किया था। ये सब मटेरियल यूज़ करके हमने हमारी जो बोर्ड की आउटलाइन हमें ईवीएस कंबाइन बुक में पेज नंबर 95 पे दी थी, वो हमने पूरी कंप्लीट की है। सो नाउ टू recap it again, I will show you the video in short. So all the students have to watch this video again so that you can recap all the things and all the steps again. So here is the video. नाउ स्टूडेंट इट्स होमवर्क टाइम। तो अभी आपका होमवर्क है। सो द होमवर्क इज you have to complete these different shapes with help of stick topic in your EVS combined book on page number 95। तो आपको ये जो टॉपिक आज हमने सीखा है वो आपको आपकी EVS कंबाइन बुक में पेज नंबर 95 पे जो उन्होंने बोर्ड की आउटलाइन दी है उसको आपको स्टिक्स चिपकाने हैं और उसको कंप्लीट करना है। तो आपको कंप्लीट करने के बाद उसका फ़ोटो खींचना है और मुझे भेजना है। So students, you have to complete that. After completing, you have to take the photo of it and you have to send to me. So I hope you will do it. So thank you student.